Directly, I take you to our guest speaker of the day. Mr. Saurabh Kausal is an engineer and entrepreneur. He is the founder and director of Smart Circuits Innovation Private Limited, Chandigarh. He's passionate about space science and technology and involved in projects related to space technology and education. He's also the recipient of Jerome Pearson Person Award 2012 from ISEC USA Young Innovator Award, SAM Global Award, Karambir Chakra instituted with United Nations. He's also appreciated and recognized by late Dr. APJ Abdul Kalam, Sri Ratan Tata ji, former Vice President Honorable Hamid Ansari ji, Padam Sri, Dr. V. Adimurthy from ISRO, and many more scientists from NASA, ESA, ISRO. He is also the recipient of Limca Book of Records for his research work in the field of space debris mitigation. He is also a TEDx speaker, Inc. Fellow, associated with Fellow Royal Commonwealth Society, London. He and his team also designed, developed, and launched high-altitude balloon satellite upon altitude of 50 kilometers in the stratosphere in March 2019. Currently, he's working on experiential learning and providing 21st century learning tools to students. His mission is one student, one innovation. So I would invite Honorable Saurabh Kausal to address this wonderful conference. So thank you very much, sir, for this introduction. Thank you. And it was a great performance by Stuti Jain. Congratulations, Stuti, for such a wonderful performance. And सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में मैं युवाओं के प्रेरणा स्तोत्र, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ उनको। जब हम इसके अलावा कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को धन्यवाद करता हूं कि they have provided such a wonderful platform to youngsters to share their work, to share their journey. So thank you very much to all the organizers of this particular conference. I don't have any PowerPoint presentation, so I will share a few of my experiences in 5 to 10 minutes. I remember a few years back, I met with Dr. APJ Abdul Kalam in Delhi. Because of my research work in the field of space science and technology. So when I met with Dr. Kalam ji in Delhi in Rajaji Marg, so he mentioned one line. He mentioned one line that is, a knowledge makes you great. Means जो आपकी knowledge है, जो आपकी innovation है, वही आपको महान बनाती है, and that's true. और मैं जब भी बच्चों से मिलता हूँ, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, किसी से भी मिलता हूँ, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, बिकॉज जो आपकी नॉलेज है, आपकी इनोवेशन है, जिस प्रकार व्हेन वी वर इन स्कूल्स हमारे एक रोल नंबर्स होते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी हमारा एक रोल नंबर होता है. सो इन दिस कॉम्पिटिटिव इरा वी आर लिविंग इन द 21st century, द सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजीज. योर इनोवेशन इज योर आइडेंटिटी, योर नॉलेज इज योर आइडेंटिटी. सो यू हैव टू वर्क ऑन सम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क. सो उस बात से बहुत कुछ सीखा हमने कलाम सर से, उनकी मुलाकात के बाद. और भी बहुत सारे कुछ यादगार किस्से हैं जो कलाम जी सर के साथ. मुझे याद है कि जब कलाम सर ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया, जब वो सोशल मीडिया पर आए थे, तो आते ही उन दिनों उन्होंने एक कंपटीशन स्टार्ट किया कि आप अपनी कुछ स्टोरी भेजिए ट्रीज से रिलेटेड. तो मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. मैंने एक अपनी स्टोरी लिखकर भेजी ट्रीज से रिलेटेड कि कैसे हमें एनवायरनमेंट से, ट्रीज से प्यार है ऑल. और मुझे याद है कि 26 जुलाई का दिन था. 26 जुलाई को मेरा जन्मदिन भी होता है. तो 26 जुलाई को एक छोटा सा प्राणी इस धरती पर आया, और 27 जुलाई को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने इस दुनिया को छोड़ा. सो 26 जुलाई को उसका रिजल्ट आया. उन्होंने फेसबुक पर डाला कि मेरी जो स्टोरी थी ट्री से रिलेटेड वो शॉर्टलिस्ट हुई. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं जो कलाम सर के साथ एक यादगार हैं, आज भी वो याद रहते हैं. और मुझे लगता है कि कलाम सर जैसा
ना कोई था, ना कोई है, ना ही होगा आगे दुनिया के अंदर जिस 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 तरह से उन्होंने वर्क किया इन द फील्ड ऑफ, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर मैं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी हम बात करते हैं तो ही इज समवट डिफरेंट, वैसा कोई नहीं था, ना ही होगा। And he contributed a lot in the field of space science and technology, and I have also done a lot of research work in the field of space science. और जब मैं 18 साल का था, I have started the research work because I was really passionate about space science. Or I was inspired from Dr. Kalam as well as from Kalpana Chawla. And I have done a lot of research in the field of space debris mitigation and proposed some new technologies how we can clean space junk from space. हम space से कैसे junk को remove करेंगे, so सभी चीजों के ऊपर काम किया। But काम करते करते एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑल, but still there are a billion of problem faced by our society these days. बहुत सारी problems है जो हमारी society world face कर रहा है। So and I'm sure there are million of solutions for the same, और उसके solutions भी होंगे। We have to work on solution. Being a person, being an individual, हमें दूसरों के ऊपर dependent नहीं रहना चाहिए, because जब भी हम देखते हैं कि हम गवर्नमेंट को क्लेम कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, right? But it's also our responsibility. We have to come up with a solution. If because I'm a technical person, I'm more into a technology, so I love to come up with the innovation and love to come up with the new technologies and all. So if I'm talking about the innovation in technology, it is directly proportional to the economy and GDP of a nation. For example, if we can do something good innovative in the field of agriculture sector, आज की डेट में एग्रीकल्चर में हम अगर बात करते हैं पंजाब हरियाणा या कहीं भी चले जाएं, तो नॉर्मल टेक्नोलॉजीज दे आर यूजिंग, जो सदियों से चलता आ रहा है वही सब चीजें कर रहे हैं। व्हाई डोंट वी कम अप विद द वर्टिकल फार्मिंग, जो एक नई टेक्नोलॉजी है, क्यों नहीं हमारे फार्मर्स उसके ऊपर काम करते हैं। द सेम एरिया में दे विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। सो अगर आउटपुट मैक्सिमम होगी, देन द ग्रोथ इज डेफिनेटली 2x 3x और 4x। सो इन दिस वे, जैसा कि कलाम सर ने कहा था कि इनोवेशन और नॉलेज ही आपको महान बनाती है, सो यू हैव टू कम विद अ लॉट ऑफ इनोवेशन, and this is the one example. In the field of agriculture, you can come up with the vertical farming, right? Similarly, you can come up with the IoTs का आज जमाना है, हम क्यों नहीं उन नई नई चीजों के ऊपर हम कुछ ना कुछ इनोवेशन करें। We can do something in the field of space technology also. आज की डेट में स्पेस टूरिज्म इज अगेन अ बिग थिंग। जब रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस स्पेस में जा सकते हैं, देन हम इंडियंस भी कुछ भी कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट? because I believe we Indians have the potential, हमारे पास वो potential है, we can do anything. We youngsters can change the equation, and everything is in the hands of youngsters. हमारे हाथ में है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, कि हमें करना क्या है, किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, किस तरह से हमें इनोवेशन को आगे लेकर जाना है। सो एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, right? We can produce the jobs also, right? We can start our own startups, we become an entrepreneur. So everything is possible, right? Starting में बहुत मुश्किलें आती हैं। When I have started, I have a small journey I want to share with you next, because I have a limited time. So I have started my research work at the age of 18 years. I am from a very small town in Haryana, in Yamunanagar. So जब मैंने अपनी रिसर्च वर्क को शुरू किया 18 साल की उम्र में, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिसर्च क्या होती है। बस एक पैशन था, एक जज्बा था कि कुछ तो करना है स्पेस की फील्ड में। और उस टाइम पर 2008 की बात है। I have given the IIT examination और AI examination I have given at that time, but IIT मेरे से क्रैक नहीं हुआ, AI में भी अच्छी खासी रैंक नहीं आई मेरी, and I got admission in other engineering trade, that is electronics and communication at that time. So बट फिर भी एक जैसा होता है ना, कीड़ा होता है दिमाग में कि नहीं स्पेस की फील्ड में तो कुछ करना है। सो व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, आई हैव स्टार्टेड इंडिविजुअल रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद मैंने इंटरनेट पे उसको रिसर्च करना शुरू किया कि क्या कुछ किया जाए। और एंड आई रिमेंबर स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं अपने फैकल्टी, अपने डायरेक्टर के पास जाता था कि सर आई हैव टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, देन दे सेड दैट अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप, right? You have taken admission in electronics and communication, why you are wasting your time in space technology? I said okay. So उसके अलावा जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता, लेक्चर्स के बीच में मैं इंटरनेट लेबोरेटरी में जाता और रिसर्च करता स्पेस के बारे में। तो एक दिन मुझे पता चला स्पेस जंक के बारे में, स्पेस डेब्रिस के बारे में, कि स्पेस डेब्रिस क्या होती है।
तो मैंने देखा कि बहुत सारा जिस तरह से धरती के ऊपर कूड़ा है, वी हैव अ लॉट ऑफ पोल्यूशन on earth, the same type of a pollution we have in space, that is called a space debris. And there's a million or billion pieces of space junk revolving at a speed of lakhs of kilometer per hour in space, जो एस्ट्रोनॉट्स की जो लाइफ है, जो स्पेस में जाते हैं, उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं वो थ्रेट है. सो मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू डू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आई स्टार्टेड रिसर्च वर्क. एंड इनिशियली कोई सपोर्ट नहीं था. देन वन डे आई रोट टू someone in US that I want to do some research work. Could you please guide me? क्या आप मुझे गाइड करेंगे? Then he replied within 24 hours, yes, I will guide you. कि कैसे आपको रिसर्च करना है. So उन्होंने मुझे गाइड किया. So यहाँ से मैं एक चीज और लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने वर्क के बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में लिखते रहिए लोगों को. Because I have that experience. I wrote to so many people. I wrote to Ratan Tata sir also. I got a reply from Ratan Tata sir also. कलाम सर के साथ भी मुलाकात ऐसी हुई. I wrote to him that I want to meet with you, and he replied back. So मैं सभी को बोलता हूँ कि जो भी आपका वर्क है, यू कैन राइट टू अ डिफरेंट पीपल, दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू. बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे आपके काम के ऊपर. एंड आई स्टार्टेड रिसर्च. सॉरी. देन आई हैव, just give me a second. Okay. Then I have started the research work, and I have proposed some new technologies to clean space junk from space. कि space में से जो space में कूड़ा है उसको कैसे remove किया जाए. And I proposed some new technologies, and I got the Limca book for the same, and appreciated by a lot of people. तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ आई कि लोग आपको तभी रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग आपको तभी अप्रिशिएट करते हैं when you can showcase. जब आप अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, then people can start recognize you. So you can do some good work, then definitely people can help you, support you in this world. वो आपको definitely help करेंगे, support करेंगे. So that's the small journey जो मैंने start की. And because of that research work, because of that innovation, I got a lot of opportunities in my life. I got a lot of fellowships, like I got an Inc fellowship, I got a fellowship in US also. और मेरा हमेशा से एक सपना था यूएस में जाकर कुछ ना कुछ करना, फेलोशिप करने का एंड ऑल. बट मेरे पास पैसे नहीं थे कि इतने में यूएस जाऊं और टिकट खरीद सकूं, वीजा लगवा सकूं. बट वन डे बिकॉज ऑफ माय वर्क आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आई गॉट फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप टू यूएस बाय गूगल एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. I went to US. मैं US गया 2015 में. I learned a lot of new things from US. कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर लोग क्या इनोवेशन कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन की फील्ड में क्या हो रहा है. And I decided to return back to India, and I have started my own company in the field of education. I met with lot of students. मैंने उनसे जाना कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या, क्या कमी है एजुकेशन सिस्टम में, हम लोग क्या कर सकते हैं. बिकॉज इट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी. ये हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम तो हमें सोसाइटी ने दिया है, वी कैन ऑल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी. And I've started that organization in India and worked with more than lakhs of students till now. And as I told you, we were passionate about space. In 2019, we have also launched one satellite up to an altitude of around 50 kilometers in stratosphere. And from stratosphere, we get the live data. I'm not a space scientist, I'm not a space researcher, but yes, आज मैं सैटेलाइट भी बना सकता हूँ, मैं रॉकेट भी लॉन्च कर सकता हूँ, because I have that passion, right? And if you have a passion, you can do anything in any field. जरूरी नहीं है कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन या डिग्री होगी तभी आप वो सब चीजें कर सकते हैं. So if you are passionate about the things, you can do anything in this world. So at last मैं यही कहना चाहूँगा कि do some innovative work, do some good work for the society. Because it's our responsibility, it's the responsibility of the youngster to change the equation. And I mean सभी दुनिया को होप है इंडिया से कि इंडिया कुछ अलग करेगा. एंड हम हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर. सो वो नेक्स्ट सुपर पावर हम लोग कैसे बनेंगे. मेरा ये बिलीफ है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से कोई भी नेशन सुपर पावर नहीं बनता है. If you have a good people, if you have good human beings, if you have good technology or innovation, और अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपके पास अच्छी इनोवेशंस है, then you can be the next super power for sure. अभी हमने देखा कि इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है और सभी कंट्रीज लगी हुई हैं. जिसके पास टेक्नोलॉजी थी, जिसके पास इनोवेशन थी, वो कंट्रीज को कम नुकसान हुआ. वो कंट्रीज ने जल्दी से जल्दी न्यू इनोवेटिव वे में नई चीजों का इनोवेशन किया. So
यही मेरा मैसेज है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और जैसा कि कलाम सर भी बोलते थे कि नॉलेज एंड इनोवेशन मेक्स यू ग्रेट। सो आप सभी कुछ ना कुछ इनोवेटिव वर्क कीजिए, किसी भी फील्ड में कीजिए, जरूरी नहीं है कि साइंस की फील्ड में करना है। इफ यू आर गुड इन डांस, go ahead and do something great work in the field of dance. If you're interested in sports, do some innovative work in the field of sports, politics, technology, mathematics, statistics, etc. But do some good work, make your identity so that people can also recognize you, recognize your work, and that help in the development and the advancement of the humanity, society, and nation. So thank you very much to the Kalam Youth Leadership Conference for giving me this opportunity to interact with the youngsters, to interact with the nation on this day. And this is our digital tribute to Dr. APJ Abdul Kalam, and I'm sure every one of us will follow the path of Dr. APJ Abdul Kalam, and we can give something to our nation and will give back to our society. That's my message to everyone. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। और हालांकि यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए सेशन को ओपन करूंगा, बिकॉज जो लोग भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे सवाल ले सकते हैं डायरेक्ट। और मैं कुछ समय अपने डेलीगेट्स को दूं, उसके पहले मैं सबसे पहला सवाल खुद अपनी तरफ से लेना चाहूंगा सौरभ साहब। सवाल ये कि कलाम साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, और जो मुलाकात के जो लम्हे थे, जो एक एक मोमेंट थे आपके साथ शुरू से लेके एंड तक, वो क्या थे? इस सवाल के बाद मैं फिर अपने डेलीगेट्स के क्वेश्चन लूंगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो जब भी हम आज मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से इंस्पायर रहा हूँ डॉक्टर कलाम जी से। आई एम पैशनेट अबाउट स्पेस साइंस। सो फॉर दैट मेरे लिए कलाम सर एक भगवान की तरह है, गॉड की तरह है। जैसे किसी को भगवान मिल जाते हैं, फॉर द सेम थिंग, क्योंकि मेरी एक बचपन से एक की अभिलाषा थी कि मैं उनसे मिलूं जाकर। मैं उनको आई मीन हर वीक में 1-2 बार ईमेल करता था मिलने के लिए। आई नो कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट था। सो जब हम उनसे मिलने गए तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि आप भगवान से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो हमने उनसे मुलाकात की। इट वाज अराउंड 45 मिनट्स मीटिंग थी हमारी उनके साथ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। पहले हमने अपना रिसर्च सौरभ वर्क साहब, उनके इस सवाल का जवाब मैं सुनूं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने कैमरा को टिल डाउन कर ले, सो दैट कि आपको मैं प्रॉपर देख सकूं और सब लोग देख सके, सो दैट कि इस सवाल का जो जवाब है हमें ज्यादा, या थोड़ा सा अगर और टिल डाउन अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया हो जाए। जी, नो इट्स फाइन। Okay. It's So perfect. it was around 45 minutes meeting with Dr. APJ Abdul Kalam ji in Delhi. दिल्ली में मीटिंग थी 45 मिनट की वो। Okay. So it was around 45 minutes मीटिंग। सो उनसे हम मिले, और जब हम उससे मिले तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो हमने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यमुनानगर से। उन दिनों हमारे यहाँ पर शहर में बाढ़ आई हुई थी। तो सबसे पहले उन्होंने उसका हालचाल पूछा कि सब कैसा है वहाँ पर। तो हमने उनको बताया कि सब चीज़ें ठीक हैं। और उसके बाद हमने रिसर्च वर्क जो हमारा स्पेस डेब्रिस के ऊपर था उसको हमने डिस्कस किया उनके साथ कि क्या क्या हमारा रिसर्च वर्क है। और फिर उन्होंने हमारा कुछ जो रिसर्च पेपर थे वो लिए, एंड ही सेड दैट कि आई विल फॉरवर्ड इट टू ISRO एंड DRDO। तो मैं इसको फर्दर फॉरवर्ड करूंगा इसरो DRDO में और साइंटिस्ट को, कि इन चीजों के ऊपर और काम हो सके और अच्छे से रिसर्च हो सके उसके अंदर। एंड ही ऑल्सो मेंशन वन थिंग कि डू सम मल्टीटास्किंग वर्क, कि आप अपनी लाइफ में मल्टीटास्कर्स बनिए। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस मत कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस आल्सो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने 10 साल किसी चीज के ऊपर लगा दिया रिसर्च करते हुए और बाद में वो आउटपुट नहीं आया। एंड इफ यू आर मल्टीटास्कर, अगर आप मल्टीटास्कर होंगे तो आपका एक दिमाग भी चलता रहेगा, राइट। आप सोचेंगे भी और ज्यादा उसे, और आप कुछ और प्रोडक्टिव आउटपुट काम करेंगे। एंड आफ्टर दैट मीटिंग एंड ही गेव अस द ऑटोग्राफ ऑन आवर रिसर्च पेपर, जो एक आज भी एक याद है, जो उन्होंने एक ऑटोग्राफ दिया रिसर्च पेपर के ऊपर। एंड आफ्टर दैट वी क्लिक सम फोटोग्राफ्स एंड ऑल। सो इट वाज रियली अ ग्रेट मोमेंट, जो एक लाइफ टाइम जो आप कह सकते हैं मोमेंट होती है। तो इट वाज दैट मोमेंट। आई मेट विद अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट इन माय लाइफ। मैं बहुत साइंटिस्ट से मिला हूँ, ISRO, NASA, USA के साइंटिस्ट। बट जो वो मुलाकात थी और उनके साथ जो मिलना था इज टोटली डिफरेंट। Okay. Or now I would, I would, I definitely get some questions from my delegate side. So I would request to please ask any question to Saurabh sir. I would request to my delegates. Anyone, please?
You can just raise your finger so that I can easily understand. Anyone, please? All right. मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन yeah, please. Sir, good afternoon, sir. Saurabh, sir. Good afternoon. Sir, at the starting of innovation, what are the challenges faced by you and how you overcome them, sir? But we are getting some innovation day to day, and how you have fixed that innovation to development of application? So, I mean, whenever you start anything, I mean, definitely in the initial stage, you face a lot of problem. So when I have started my research work, I faced a lot of problems. Starting में मेरे पास mentorship नहीं था proper. As I told you, मुझे starting में faculties, directors का support नहीं मिला. And जिस होम टाउन से मैं हूँ उसके आसपास कहीं पर भी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. So I faced the mentorship problem, I faced the guidance problem. But the thing is that I'm a self motivating person. मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करता रहता हूँ और खुद मेरे टारगेट्स अपने खुद सेट करता हूँ कि ओके आज अगर मैंने ये किया है तो अब माय नेक्स्ट टारगेट इज दैट. ओके अगर आज मुझे मैंने ये रिसर्च वर्क किया है, नेक्स्ट टारगेट इज दैट. फॉर एग्जांपल और आई मीन हम इंडियंस क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कम रिसोर्सेज हो तो हम अच्छे से ज्यादा इनोवेशन करते हैं. सो दैट्स द ग्रेट थिंग. अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं देन क्या होता है कि हम लो कॉस्ट की तरफ भागते हैं, लो कॉस्ट इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करते हैं व्हेन वी हैव अ लो रिसोर्सेज एंड ऑल. कम रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास उसमें. सो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए कि वो पर्सन आकर आपको सपोर्ट करेगा या वो आपको हेल्प करेगा. जो भी करना है वो आपको खुद करना है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं आने वाला है. तो यू हैव टू आई मीन सेट योर टारगेट्स. सेल्फ मोटिवेशन आप रखिए उसके अंदर. डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय स्टार्टअप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आई थी. उसके बाद व्हेन वी हैव टू लॉन्च द सैटेलाइट, जब हमें सैटेलाइट लॉन्च करना था तो पहले नहीं पता था कि कैसे बनाते हैं, बट वी हैव मेड दैट सैटेलाइट. 12 मंथ्स लगे परमिशंस लेने के लिए गवर्नमेंट से. हमें नहीं पता था कि गवर्नमेंट से परमिशंस कैसे मिलती हैं. हमारा भी पहली बार था. वी हैव टेकन द परमिशंस आल्सो. तो धीरे धीरे कुछ फेलियर्स हुए. उन फेलियर से हमने सीखा. फॉर एग्जांपल व्हेन वी रोट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वी हैव टू लॉन्च द सैटेलाइट, उन्होंने रिजेक्शन डाला कि दिस इज द रिजेक्शन. वहां से सीखने को मिलता है आपको छोटी छोटी रिजेक्शन से, फेलियर्स से. एंड सेल्फ मोटिवेशन रखिए, टारगेट्स फिक्स कीजिए. अगर आज आपने ये किया तो नेक्स्ट माय टारगेट इज दैट, राइट. और आज की डेट में कहीं ना कहीं अच्छा मेंटोर होना भी बहुत जरूरी है. बिकॉज जो मेंटोर है उनके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस होंगे जो अपने एक्सपीरियंस से आपको सपोर्ट करेंगे. सो इफ यू विल गेट सम गुड मेंटोर दैट वुड बी ग्रेट. और मैंने जैसा आपको बताया कि आप अपने काम के बारे में लिखते रहिए. एक पर्सन को लिखिए, दो को लिखिए. मेरा यही काम है कि जो भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ या कुछ भी मैं करता हूँ, मैं जरूर किसी को ईमेल कर देता हूँ. और उनका रिप्लाई भी आता है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रतन टाटा सर को ईमेल किया, कलाम सर को किया, नासा में मैं ईमेल कर देता हूँ. और ईमेल करने में मैं किसी को कहता हूँ कि 1 रुपया नहीं लगता है. भेजिए, आप जितना अपना वर्क भेज सकते हैं. बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे. जैसा कि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ. मैंने यूएसए में लिखा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि रिसर्च पेपर को कैसे लिखते हैं. उन्होंने मुझे पूरा हेल्प किया उसके अंदर लिखने में. एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. और ऐसे ही मुझे यूएस जब मैं गया मुझे फेलोशिप मिली. इन द सेम वे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैंने किसी को लिखा अपने वर्क के बारे में, उनको अच्छा लगा एंड दे गेव मी द फेलोशिप इन यूएस. सो एक सेल्फ मोटिवेशन रखिए. जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको एंड तक लेके जाइए. क्योंकि जब भी कभी आपके मन में ये आए, क्योंकि हम डिमोटिवेट होते हैं डेफिनेटली. और आज का जो यंगस्टर है वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है सब चीजों से. बट जब भी आप डिमोटिवेट हो तब दोबारा सोचिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था. एंड उस पल को सोचिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था उस टाइम पर. तो कुछ अच्छे के लिए स्टार्ट किया होगा आपने. एंड देन दोबारा से आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. थैंक यू. Thank you very much, sir. Wish you good luck for more achievements. All right, I would like to take next question. Anyone, please? Anyone? All right. So, hello, Shekhar. Shekhar. Yeah. Am I audible? Yeah, perfectly now. Okay. I don't exactly have a question, but I would just like to, say congratulations to Saurav Kaushal for his wonderful insights which he had shared with all the youths out here.
and certain things which he had highlighted, I am sure the youths who are assembled here will keep it in mind. He has talked about self-motivation. He has talked about, innovation. Again, he has talked about knowledge. He has given emphasis. Exactly, it is not him, but he got that message from Kalamji, who said that if you want to grow, you have to grow through knowledge and innovation. That means you think innovatively all the time. And another thing which I like is you should never be dependent. You should not always, depend on others to come forward to help you. God always helps those who help themselves. You have to take that first step forward and you have to keep trying. Failure always the pillars of successes. You might not meet with success immediately, but if you keep trying, one day or the other, definitely you will see light. And so thank you so much, Saurabh, for sharing all your experiences, your views, your opinion with the youths here today, and wishing you great success in your future career too. Thank you. Thank you, Archana. Thank you very much. All right, and one